Hello everyone. So today we will discuss about the solutions of uh, half yearly exam mathematics class 7. Okay, so let us take this up first. And what we have over here is first question, medium of the following numbers. So many of you, what error you committed was you did not arrange them in an array, and that is why you got 23 as answer, which was like totally incorrect. उसको पहले array में arrange करना है, उसके बाद हम median निकालते हैं. So there are 7 observations. So out of this 4th observation आएगा, लेकिन अगर array में arrange नहीं किया होगा तो आंसर गलत आएगा. So that's why the answer, once you arrange it into arrow, the answer will be 17. Third proportional is first number is to second number is to the same one as the third number, and then you have the third proportional. So 29 is to 9 is to 9 is to x. So that's how we get 3 as the answer. So what we have over here, this is the correct answer, this is the correct answer. The value of 0.0075 expressed in percent is, percent मतलब उसको 100 से multiply करना है. So correct answer will be 0.75%. Next question, Shyam sold a book for rupees 120 at a profit of rupees 40. So what you need to remember over here is that यहाँ पर selling price भी rupees में है, यहाँ पर profit भी rupees में है. तो हमें पता है जब प्रॉफिट हुआ होता है तो सेलिंग CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट. यहाँ रुपीज़ में हमको मिल जाएगा 80 रुपीज़. एंड नाउ वी कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट विच इज़ प्रॉफिट बाय CP इंटू 100. तो हमको मिल जाएगा 50%. दैट वुड बी द आंसर ओवर हियर. द रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट? So the correct answer is multiplicative inverse, not its additive inverse. Additive inverse हमें rational number, हमें integers में sign के terms में मिलता है हमें additive inverse. Alright, subtract 3.9 from 4.0012 and you get. तो यहाँ पर पहले हमको इसको दोनों को हमको like decimal में change करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमको add करनी होंगी 3 zeros. And then what you get is this answer. So this is the correct answer, and your correct option is B, 0.1012. The product of two numbers is itna, and one number is given. Product मतलब दो numbers को multiply किया जाता है तब आता है. तो 24 and a half is 49 by 2. And 5 1 by 4 is 21 by 4. So this will be, ये दोनों का प्रोडक्ट था तो इसको पहले रखना है, फिर इससे डिवाइड करना है. देन यू गेट द आंसर एज 4 2 by 3 और 14 by 3. दैट इज फॉर योर क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस from this, that means this will come in the beginning. ये पहले आएगा, ये यहाँ पे इसको पहले लिखना है. उसके बाद ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में जाएगा और बाहर माइनस साइन लगेगा. व्हाट इट मीन्स इज यू विल नीड टू ओपन द ब्रैकेट, सबके साइन चेंज होंगे. उसके बाद लाइक टर्म्स को हम ग्रुप करके रखेंगे और फिर इंटीजर्स में जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे. So the answer that you get over here is 3x square minus 8x plus 7. यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा एरर था, साइंस जो थे वो इंटरचेंज हो गए थे. By how much does 2 exceed 3? That means 2 is exceeding, 2 ज़्यादा है यहाँ पे, तो 2 को हमको पहले लिखना पड़ेगा. 2 minus 3, फिर यहाँ पर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे दिस बिकम्स +3 एंड दिस इज 5. लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ नंबर लाइन एज वेल. तो अगर हम छोटा सा एक यहाँ पर नंबर लाइन बनाते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ सिंपल नंबर लाइन ओवर हियर. सो लेट अस से यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है,
हमें -1 है, -2 है, -3 है। पूछा है कि हाउ मच डज 2 एक्सीड 3, मतलब -3 से 2 कितना ज़्यादा है। तो सी 1 2 3 4 5 places you are jumping towards right, that means your answer will be +5। रेशियो ऑफ 6 kg to 400 grams इज, बहुत सारे लोगों ने 1000 और 400 कर दिया। 1400 नहीं है, 6 kg है ना, सो यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू ग्राम्स। सो 6000 is to 400 will give you 15:1, so that will be your answer over here। Now let us move on to the next set of questions। यहाँ पे if a by b is equal to 4:5 and b is to c is equal to 6:7, अब हमको यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे दोनों जगह b को बराबर करना है। तो b को बराबर करने के लिए हमें क्रॉस करना पड़ेगा। उसको कैसे क्रॉस करना पड़ेगा, 5 है यहाँ पर, एक जगह पर b की वैल्यू है 5, एक जगह पर b की वैल्यू है 6। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है 30। तो हमको 30 बनाना पड़ेगा दोनों जगह b को। तो यहाँ भी हमने 30 बनाया, यहाँ भी हमने 30 बनाया। तो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6, हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6, हियर वी मल्टीप्लाई बाय 5, हियर वी मल्टीप्लाई बाय 5। So you get this answer as 24:35। That is the first question। Now second question is 25% of a number is 65। 25% of a number is 65, that means number will be equal to, ये यहाँ मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाएगा तो रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 65 into 100 by 25 and that gives you the answer as 260। थर्ड वन, यहाँ बहुत लोगों ने गलत किया है। यहाँ करना क्या चाहिए था, हमेशा जितने भी प्लस साइन वाले हैं उनको एक साथ रखो, उनको ऐड कर लिया। फिर जितने माइनस साइन वाले हैं उनको एक साथ रखो, उनको ऐड कर लो, बट दे विल रिटेन द माइनस साइन। फिर उसका फाइनल ऑपरेशन करना है where you have 1 plus and 1 minus sign, so you subtract the smaller number from the larger number and you give the sign of the बड़ा भाई, right? तो यहाँ बड़ा भाई है 20.629, so this will be the correct answer plus 2.459। यहाँ पर किसी ने भी यहाँ -5 + 9.28 दोनों को ऐड कर दिया। इट डजंट वर्क दैट वे। यू हैव टू सी, जब भी ऐसा आता है हमेशा सारे प्लस वाले साइंस एक साथ ऐड करो, सारे माइनस वाले साइंस एक साथ ऐड करो। आई हैव टोल्ड दैट टू यू रिपीटेडली। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्रीज। सो उसको हम ऐसे स्प्लिट करते हैं 89 डिग्रीज 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, उसमें से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं 180 डिग्रीज, तो हमें उसको स्प्लिट करना है 179 डिग्रीज 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दीज आर द आंसर्स दैट वी विल गेट ओवर हियर। अब यहाँ पर दिया था अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 10 मैचेस, तो उसका मीन स्कोर कितना लगाना है। मीन मीन्स व्हाट, मीन इज योर एवरेज, राइट। मीन का मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज ही निकालना था यहाँ पे। जस्ट zoom it a little bit over here। एवरेज ही निकालना था, सबको ऐड करेंगे तो 414 होगा डिवाइडेड बाय 10। तो डायरेक्ट है, जब 10 से डिवीजन है तो यहाँ पर एक 0 है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। बहुत सारे लोगों ने फिर इसको आधा करके फिर 5 लिखा, यहाँ पर 207 डिवाइडेड बाय 5, फिर कुछ और लिखा, किसी ने तो 27 लिख दिया 414 को। सो प्लीज़ चेक विद योर डिवीजन एंड योर डेसिमल डिवीजन। नीचे अगर एक 0 है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट लग जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट में डेसिमल मूव करता है। सो दैट इज हाउ इट नीड्स टू बी डन। रिप्रेजेंट ईच ऑफ दीज रैशनल नंबर्स ऑन सेपरेट नंबर्स लाइन। अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नहीं समझ में आया है। दे आर आइदर नॉट पेइंग अटेंशन और दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ और दे आर नॉट क्लैरिफाइंग द डाउट्स। यहाँ सीधा सीधा है, यहाँ हम देखते हैं द
नंबर इज 4/3. 4/3 को जब हम मिक्स नंबर में चेंज करते हैं इट बिकम्स 1. 1/3. सो 1 है यहाँ पे, इट मीन्स इट विल लाई बिटवीन 1 एंड 2. ये 1 और 2 के बीच में होगा, पॉजिटिव साइड होगा. सो वी डोंट नीड टू ड्रॉ नेगेटिव साइड. अब 1 1/3, दिस गिव्स अस द नंबर ऑफ डिविजन्स. सो वी डिवाइड देम इनटू 3 पार्ट्स. वन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट. अभी कौन सा वाला डिवीजन लेना है? फर्स्ट डिवीजन लेना है. सो दिस विल बी योर 4/3. सेम ओवर हियर -11/4 है. इसको जब हम मिक्स नंबर में चेंज करते हैं सो इट बिकम्स -2 3/4. तो माइनस, इसका मतलब यहाँ जब -2 आए तो इट मीन्स इट लाइज बिटवीन -2 एंड -3. तो यहाँ पर 4 डिविजन्स हमको लेना है. सो वी डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, 1 2 3 4. एंड कौन सा पार्ट हमें लेना है, कौन सा डिवीजन लेना है? थर्ड. सो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, एंड दिस इज वेयर वी गेट -11/4. So that was that for your 2 mark question. Now let us move to the 3 mark question. यहाँ पर ये एक क्लॉक दिया गया था और इसमें बताया था कि एक ऑब्ट्यूस एंगल है, एक रिफ्लेक्स एंगल है. नाउ व्हाट यू सी ओवर हियर इज, ये जो पूरा 12 जो मार्किंग्स है यहाँ पे 12 आवर्स जो है वो पूरे 360 में डिवाइड होते हैं. सो व्हाट इट मीन्स इज 1 डिविजन stands for 30 degrees. 12 divisions है, total 360 है. तो each division is equal to 30 degrees. तो 4 o'clock के लिए 4 30 degrees, 4 into 30 120. Reflex angle 360 minus 120 is equal to 240. Those are the 2 things that you needed to write over here. अब CP of 25 pence is equal to SP of 20 pence. मैंने दोनों तरीके से दिखाया है, 100 से भी और X से भी. So those who are comfortable with 100, watch this part. Those who are comfortable with X, watch this part. You can pause the video and check the solution over here. अब हम यहाँ पर 100 जब लेते हैं तो हम 100 क्यों लिया? हमने दोनों का LCM ले लिया है, राइट, नंबर्स से अज्यूम करके. तो 25 पेन और 20 पेन दोनों का LCM होता है 100. सो लेट अस से CP ऑफ 25 पेन इज ₹100. तो CP ऑफ 1 पेन आ गया 4 रुपीज़. अब ऐसे ही SP ऑफ 1 पेन आ गया 5 रुपीज़. तो SP जब ज़्यादा है, CP कम है, तो दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का. एंड डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंट का हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है, दैट दिस इज P% इज इक्वल टू P/CP इंटू 100. फॉर्मूले जिन लोगों ने नहीं याद किए हैं उनका गलत होगा ही होगा. एंड दिस इज वेयर वी हैव डन इट विथ X, राइट. अब नेक्स्ट सम यहाँ पे, नेक्स्ट सम जो लिया है हमने, फाइंड द सम ऑफ 2x टू द पावर 4. अभी यहाँ पहले सारे लिख लिए, उसके बाद हम एक एक करके लाइक टर्म्स को एक साथ ग्रुप करते जाते हैं. सो 2x 4 हुआ, -4x ये यहाँ पे रख दिया. फिर +3x³ और कौन सा है -7x³. oh sorry, not that. +3x³ -2x³ +6x³. तो +3 -2 +6. फिर नेक्स्ट हमने किया +5xy³, फिर -7xy³, फिर -3xy³. ये सारे लिख दिए. उसके बाद नंबर्स है -9 +2. अब जब हमने ग्रुपिंग कर दी है तो यहाँ पर फिर हमें जैसे हम इंटीजर्स लेते थे उसी तरह से हमको इसको कंसिडर करना है. सो हाउ आर वी कंसिडरिंग इट? दिस विल बी दिस पार्ट, ये जो यहाँ पर है, सो यहाँ पे क्या हो गया 2 - 4. दोनों देखो अलग अलग साइन है तो ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का एंड साइन ऑफ बड़ा भाई. तो आंसर यहाँ पर आ गया -2. ये वाला कुछ भी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहेगा. सेम वे इधर हमको लेना है +3 -2 एंड +6, राइट. मैंने क्या बोला था, सब प्लस के साइन एक साथ ऐड करो. यहाँ आ गया +9, उसमें फिर -2 लगा दो, 7 + 7 xy³ will not change over here. Same over here. यहाँ पे क्या क्या था, +5
-7 -3, तो ये हो गया -10। अभी -10 + 5, दोनों ऑपोजिट साइंस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, साइन ऑफ बड़ा भाई, तो यहाँ आ गया -5। सेम ओवर हियर -9 + 2, ऑपोजिट साइंस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, साइन ऑफ बड़ा भाई। तो इसीलिए दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कैलकुलेट, एंड इफ योर इंटीजर कॉन्सेप्ट्स आर वीक देन यू विल गेट दिस रॉन्ग। अच्छा, और ये याद रखो कि ये पार्ट जो है, जब भी हम लाइक टर्म्स में उनको ग्रुप करते हैं, दिस पार्ट डज नॉट चेंज, द वेरिएबल्स डू नॉट चेंज, राइट? सो वेरिएबल्स डोंट चेंज, वेरिएबल्स रिमेन द सेम। वेरिएबल्स कब चेंज होंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल्स कभी चेंज नहीं होते। Now let us take up this last question in this question number 4. हर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है, और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स लिया जा रहा है। तो उसने 3 करेक्ट आंसर लिखे, दैट मीन्स उसको हर करेक्ट आंसर के लिए उसको 15 नंबर मिले। फिर हर इनकरेक्ट आंसर के लिए उससे माइनस मार्क्स ले लिए जा रहे हैं, उसके मार्क्स उससे वापस ले लिए जा रहे हैं। जितना उसने स्कोर किया है नेगेटिव मार्किंग में, ऐसे ही होता है, उसको 15 - 8 होगा। 15 प्लस मार्क्स मिले उसको, 8 माइनस मार्क्स मिले, सो उसका टोटल स्कोर है 7। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने 23 लिख दिया। अरे 23 कैसे होगा जब उसके करेक्ट खाली 5 ही हुए हैं, तो उसको 23 कहाँ से मिल गए मार्क्स? सो दैट इज वेयर यू नीड टू अप्लाई सम कॉमन सेंस एज वेल, कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या हिसाब से आंसर आना चाहिए, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी बहुत लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। So what the question said was, he joined at 24 years, he retired at 60 years. Ratio of years he worked to his age. तो उसने कितने साल उन्होंने काम किया था? प्रेजेंट एज उनकी है 60 years, राइट? उन्होंने काम कितने साल किया? 60 - 20, 24 years में उन्होंने शुरू कर दिया था, तो he worked for 36 years. So his ratio will be 3:5, 36:60. बहुत सारे लोगों ने 24:60 लिख दिया है। नहीं, वो नहीं होगा, 2:5 नहीं है उसका आंसर। पूछा था years he worked, वो निकालना था। ऑलराइट, नाउ डिवाइड दिस बाय डेसिमल। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको डिवाइड करना था। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ पे एक 0 लगा सकते थे, 1823.7 बाय 230, वैसे करके भी डिवाइड कर सकते थे। एक हमेशा हमें जो डिनोमिनेटर होता है, वी शुड मेक द डिनोमिनेटर फ्री ऑफ डेसिमल्स व्हेनेवर वी आर डिवाइडिंग। उसके लिए हमें न्यूमरेटर के डेसिमल को शिफ्ट करना पड़े या 0 लगाना पड़े, जो भी करना पड़े, डिनोमिनेटर का डेसिमल हमको हटाना है। तो यहाँ हमने हटा दिया, तो यहाँ हटाने से 23 आ गया। अब 23 7 टाइम्स इज 161, फिर बचा 21, फिर 3 नीचे आ गया, 9 टाइम्स इज 207, 6 बचा, फिर हमने यहाँ 7 नीचे लिया। जब हमने 7 नीचे लिया, दिस 7 इज कैरीज अ डेसिमल विद इट, सो दैट्स वाई वी विल पुट अ डेसिमल ओवर हियर। फिर हमको 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था इसको। 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब हमें 3rd डेसिमल प्लेस भी निकालनी पड़ेगी। एंड व्हेन वी सी दिस इज लेस देन 5, सो ये वाला पार्ट जो है ये सेम रह जाता है, एंड दिस बिकम्स द आंसर। ठीक है, नाउ यहाँ वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने गड़बड़ किया था। A number is first increased by 40 and then decreased by 60. I have shown this in X method as well and here as well. दोनों जगह मैंने दिखाया है, और एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट अप फॉर्मूला था जिसको लगा करके 1 स्टेप में आ सकता था ये क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेट द नंबर बी 100 इंक्रीज बाय 40%, तो डायरेक्टली वो बन जाता है 140। अब इट इज डिक्रीज बाय 60%, मतलब
अब हमें निकालना है कि 140 का 60% कितना होता है। 140 का 60% आता है 84। रिमेंबर इट इज डिक्रीज्ड बाय 84, तो डिक्रीज कर दिया तो ये बन गया है नया नंबर 56। इसका मतलब अब पूछा था कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज। तो शुरू हुआ था 100 से और अल्टीमेट नंबर आ गया 56। सो 100 माइनस 56 इज इक्वल टू 44%। सो दैट्स हाउ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। x से कैसे किया हुआ है, आई हैव शोन इट ओवर हियर। So those who want to understand it by x can pause the video and watch the solution over here. सीधा सीधा जैसे मैंने बताया डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी हो जाता है 100। When it is increased by 40%, तो ये बन जाता है यहाँ पे, जब इसको 40% इंक्रीज किया तो यहाँ हो गया ये 100 प्लस 40, तो यहाँ 140 बाई 100 आ गया। फिर जब इसको डिक्रीज किया 60% से तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40, तो यहाँ फिर 40 बाई 100 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ स्ट्रेट अप हमको आंसर मिल जाता है 56। एक जो हमने 2 स्टेप में किया ये यहाँ 1 स्टेप में ही मिल जाएगा। तो हाउ डू वी गेट 44? 100 था ओरिजिनल नंबर और अभी नया नंबर बन गया है 56। दैट मीन्स डिक्रीज कितना हो गया है, ये 100 में से 56 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो वी गेट 44% ओवर हियर। अच्छा, ये वाला कंस्ट्रक्शन तो ठीक है, कुछ लोगों ने किया है, बट व्हेन यू कंस्ट्रक्ट यू शुड ऑलवेज मार्क द एंगल। हाँ, यहाँ बहुत लोगों ने गड़बड़ किया। दिस वॉज अ बार ब्रैकेट, दिस इज अ बार ब्रैकेट एंड बार ब्रैकेट इज अनदर ब्रैकेट। वो सिंपल ब्रैकेट है जिसमें कि उसको खोलने के समय बाहर देखो नेगेटिव साइन था, यहीं पे सब बहुत लोगों ने गड़बड़ किया। तो व्हेन यू आर ओपनिंग अप द बार ब्रैकेट इट्स जस्ट लाइक अनदर ब्रैकेट। तो यहाँ ये y प्लस था, ये x माइनस था, तो यहाँ ये माइनस y हो गया और x प्लस हो गया। इसी की वजह से और फिर उसको एक एक ब्रैकेट करके खोलते जाओ। यहाँ इसको खोल दिया, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे खोल दिया, फिर उसको एक साथ ले लिया एंड देन स्टेप बाय स्टेप यू आर सपोज टू फॉलो। बहुत सारे लोगों ने क्या किया ना, इसको x और y मिला दिया है, नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सो यू कैन नॉट मेक इट XY, तो कुछ भी XY करके दोगे तो आंसर नहीं आएगा। You need to follow it step by step. Here I saw many of you did not understand this. This was bar bracket. All right. Now let us move to the next question. It was do as directed. यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको सॉल्व करना था। यहाँ क्वेश्चन दिया था कन्वर्ट 17/90 into recurring decimal. अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, I don't know why, बट वॉट दे डिड वॉज उन्होंने उल्टा कर दिया है। इधर उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने रखा है 90 डिवाइडेड बाय 17। अरे ऐसे नहीं है, दिस लुक एट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। 90 इज द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 90 इज द डिवाइजर, ठीक है। और 170 आएगा यहाँ पे 10 यहाँ पर आएगा तुम्हारा this will be 0.18 और 8 के ऊपर डॉट है बिकॉज 8 is being repeated again and again, 8 is recurring, so this will be it. Convert 0.35 रिपीटेड है इंटू वल्गर फ्रैक्शन। हमें पता है डायरेक्टली ये जो है ये न्यूमरेटर में जाता है और जितने नंबर्स रेकर हो रहे हैं उतने 9 लग जाते हैं। एकदम स्ट्रेट अप क्वेश्चन था, एक लाइन का आंसर था। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अभी हमें देखना है 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट डिजिट क्या है। दिस इज मोर देन 5। वो बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन उसको करना क्या है, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो ये वाला नंबर में +1 हो जाता है, तो दिस बिकम्स 4.74। बाकी चीज़ें सेम रहती। किसी ने इसको 5 लिख दिया, अरे 5 क्यों किया भाई, 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना ना, तो सिर्फ थर्ड वाले से कंपेयर करेंगे, राइट। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस। ये वाला जो था यहाँ पे आप देखेंगे कि ये
लाइन और ये दोनों पैरेलल्स हैं. सो अब ये जो है ये एक z की तरह बना रहा है. व्हाट इट मीन्स इज दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो यहाँ अगर 72 है तो ये c जो है ये ऑटोमेटिकली 72 हो जाता है. अभी a जो है वो b के अगर हम देखेंगे ये दोनों लाइंस, अगर हम ये दोनों पैरेलल लाइंस देख रहे हैं तो ये ट्रांसवर्सल है, राइट. तो इधर ये a और 55 ये जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसीलिए a है 55. अच्छा, b को हम ऐसे भी देख सकते हैं. a यहाँ पर 55 आ गया हमारा. b प्लस c 50 प्लस 55 इज 180 डिग्री. ये तीनों एंगल अगर हम मिला देंगे तो ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है. तो b प्लस c प्लस 55 इज 180 डिग्री. यहाँ c की वैल्यू हमको मिल गई है 72. इसको भी अगर हम लगाएंगे तो b की वैल्यू आ जाती है हमारी 53. ऐसे भी लगा सकते हैं कि तीनों एंगल 72 प्लस a प्लस b इज 180 डिग्री बिकॉज दे आर द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो a प्लस b प्लस c 60 डिग्री आना चाहिए. तो 72 हमें मिल गया, a हमें यहाँ पे 55 मिल गया, तो b हमारा ऑटोमेटिकली 53 आ जाता है. अब इधर पे था फाइंड द मीडियन वेट एंड मीन वेट फ्रॉम द गिवन टेबल. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, सॉरी ओवर हियर दिस विल बी, यहाँ पर 8 नहीं था, यहाँ पे 5 था, राइट. यहाँ पे है 5, तो दिस बिकम्स 42 ओवर हियर. तो हम सबसे पहले तो इसको सीक्वेंस में लिखना चाहिए, हमेशा एरे में अरेंज होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो 46, 48, 49, 50, 53, 55 अगर ऐसे नहीं लिखा होगा तो फिर मीडियन जो है वो गलत होगा. इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी. इसका मतलब क्या, 9 स्टूडेंट है जिनका वेट है 46 kg, 6 स्टूडेंट है जिनका वेट है 48 एंड लाइकवाइज. सो जब हम ऐड करते जाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यही मतलब है. 9 हुआ, फिर 6 और ऐड हो गए तो 15 हो गया, फिर 7 और ऐड हो गए तो 22 हो गया, फिर 8 और ऐड हो गए तो 30 हो गया, 7 और ऐड हो गए तो 37, 5 और ऐड हो गए तो 42. अब हमें मीन निकालने के लिए इसको सबको ऐड नहीं करना है. 46 प्लस 45 ऐसा नहीं करने से होगा. और यहाँ पर किसी ने कर दिया है 6. अरे 6 नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स नहीं है. यहाँ 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 टोटल 42 स्टूडेंट्स हैं. तो हमें सबको मल्टीप्लाई करना है. 46 9 टाइम्स, 48 6 टाइम्स, 49 7 टाइम्स, तभी तो हमको पूरा 42 स्टूडेंट्स का टोटल वेट मिलेगा ना. तो यहाँ पर आता है 2091. इसको जब हम 42 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पर ये मीन वेट विच इज 49.7 kg. सेम यहाँ पर मीडियन को भी हमें देखना है. तो मीडियन कैसे हम देखते हैं, मीडियन हम देखते हैं कि टोटल हमारे ऑब्जर्वेशंस कितने, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे 42. तो इवन होता है तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं. तो हमें मिला 21st ऑब्जर्वेशन प्लस 1. तो 21st और 22nd ऑब्जर्वेशन हमको देखना पड़ेगा. अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि 21st और 22nd ऑब्जर्वेशन इस लाइन में आ रहे हैं वेयर बोथ ऑफ देम हैव 49 kg वेट. इसीलिए इधर पे जो मीडियन होगा विच विल बी 49 kgs, ये इसका वेट आएगा. ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, 6th क्वेश्चन के ऊपर. यहाँ पर था टोटल वेट. व्हाट आई फाउंड सरप्राइजिंग वाज कि बहुत सारे लोगों ने ये -21/2 क्यों किया. ये हमेशा पहले आएगा. दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द बिगनिंग, क्योंकि ये तो टोटल था. सारे जितने ग्रेप्स थे पूरा टोटल ग्रेप्स इतना ही था. इसका इतना है, पुनीता को इतना दिया, अनीता को इतना दिया, तो दोनों को ऐड करो कि दोनों को दिया कितना. तो दोनों को ऐड करने से हमको मिलता है, दोनों को मिला के दिया 187/35 kg. अब हमको 21/2 में से 187/35 को सब्ट्रैक्ट करना है.
तब हमको मिलता है 461/70 kg। तो अगर किसी ने यहाँ तक भी छोड़ा है तो आई हैव गिवन मार्क्स, किसी ने उसको मिक्स्ड नंबर में किया है देन ऑल्सो आई हैव गिवन यू मार्क्स। अच्छा, नेक्स्ट जो था वहां पर था बाय सेलिंग एन आर्टिकल, सो दैट मीन्स एसपी इज 240, गेन इज 20%। यहाँ पर बहुत लोगों ने गलत फॉर्मूला यूज किया। तो जब हमें सीपी निकालना है, पूछा ना फाइंड द सीपी, तो सीपी जब हमें निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना भाई, उल्टा पुल्टा क्यों फॉर्मूला यूज करें। 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, 100/100 प्लस गेन परसेंट इज 120 इंटू एसपी। तो सीपी हमारा निकल के आ गया 200 रुपये। अब पूछा है इफ ही सोल्ड इट फॉर 275, सीपी तो 200 है, अगर एसपी 275 होता तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता। तो देखो भाई गेन कितना हो रहा है, गेन हो रहा है 75 रुपीज़ का, क्योंकि 200 रुपये की चीज़ थी उसको 275 में बेचा है। अब यहाँ पर लगा दो गेन परसेंट का फॉर्मूला, गेन बाय सीपी इंटू 100। तो यहाँ हमको आ जाता है फाइनल आंसर 37 1/2%, ठीक है, या 75/2 भी किसी ने लिखा है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल COA की वैल्यू निकालनी थी इधर। तो यहाँ पे क्या था, ये पूरा मिला करके कितना होना चाहिए, ये सब मिला करके होना चाहिए 360 डिग्रीज, राइट। तो सबको ऐड करने से आता है 297, 360 में से 297 सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिल जाएगा 63 डिग्रीज। ये x की वैल्यू हुई खाली, ये x की वैल्यू। लेकिन COA एंगल कौन सा है, COA एंगल है, इफ आई कैन जस्ट चेंज इट, COA एंगल है ये वाला, COA ये वाला एंगल है। तो इसमें है x + 47, तो x + 47, तो इसका आंसर आएगा 110 डिग्रीज, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बाय सेलिंग 2 ड्रेसेस, वन फॉर ईच फॉर 600, एक शॉपकीपर 20% एक पे गेन करता है, दूसरे पे 20% लॉस करता है। तो मैंने दोनों एक साथ लिख दिया है, एसपी दोनों का है 600, गेन है 20%, लॉस है 20%। फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, और लॉस के केस में सीपी इज इक्वल टू 100। ये फॉर्मूले अगर नहीं ठीक से किए होंगे तो आंसर पूरा गलत आएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला जिसने ठीक लिखा है उसका आंसर सही आएगा। तो यहाँ आ गया 100/120 इंटू 600। तो इसका सीपी आता है 500 और इसका सीपी आता है 750। अब टोटल एसपी तो हमें पता है 600 + 600 इज इक्वल टू 1200। टोटल सीपी कितना हो गया, 500 + 750 इज इक्वल टू 1250। मतलब सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है। कितना ज़्यादा है, तो लॉस हो रहा है, हमें 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। फिर अब हम लॉस परसेंट निकाल लेते हैं वही फॉर्मूले से, लॉस बाय सीपी इंटू 100, 50/1250 इंटू 100, एंड दैट गिव्स अस द फाइनल आंसर एज 4%। नाउ वी कम टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पर कि हमें एक बार ग्राफ बनाना था। सबसे पहले तो जो याद रखना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक मिनट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है। हमेशा डिपार्टमेंट यहाँ पे लगाया जाएगा और वो नंबर जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे जाता है, वाई एक्सिस पे जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 100 से शुरू कर दिया। 100 से नहीं शुरू होगा, ये बराबर होने चाहिए डिविजन्स। जैसे यहाँ 50 50 50 50 50 50, ये स्पेसिंग जो है वो इक्वल होनी चाहिए। सो डिविजन्स मस्ट बी इक्वल। कुछ भी अपने मन से नहीं लगा सकते कि यहाँ 120 लिख दिया, फिर यहाँ 340 लिख दिया, फिर यहाँ 200 लिख दिया, कुछ भी ऐसे नहीं। डिवीजन हमेशा बराबर होंगे।
और यहाँ पे लिखना चाहिए कि ये क्या बना रहे हो, यहाँ पे लिखना चाहिए क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे स्केल देना चाहिए कि हर ईच एंड एवरी डिविजन रिप्रेजेंट्स व्हाट. सो दिस डिविजन रिप्रेजेंट्स 50. वन डिविजन इज इक्वल टू 50 वर्कर्स. उसके बाद ये जो है ये प्लॉटिंग किया जाएगा, अदरवाइज इट इज़ टोटली इनकरेक्ट. इसको ठीक से करना चाहिए. So that is that for your solutions. I hope you understood it. Thank you so much for watching. You can re-watch it any part that you have not understood.